Okay. So in previous classes, we tried to solve a small problem of a simple calculator, right? In one of the classes in the past. So what was the idea? We had a main method, right? We tried to write a main method, and then we had a number of methods like um add, subtract, and so on, right? Just assume this program is not just a simple calculator program, but rather a scientific calculator program. So we will have a lot of functions, right? Maybe square root, okay, or power, a function that represents a power, even a complex form of power notations, right? All those things. So what happens is, even though we have coded in Java, assuming that Java is a object-oriented programming language, it is in fact, right? But we try to code it in a very simple fashion, just like a procedural language, right? For a very lengthy expression, for example, we started with the main method. That main method might probably scan or read the expression, and then it will break down into subcomponents, and then it will start calling these function depending upon what is required, what operation is required, and then it will get the result back, gather it in some variable, call maybe the other function, and so on. And the function may in turn may call some other function. Like for example, if one part of the expression is say x to the power 3 by 2, right? So first it will call a method for getting the cube of x, right? And it will return something, and then it will call the method to get square root. Okay, being a scientific calculator, square root of whatever the result that we get. Okay, and then finally gather it back and so on. And finally, the whole equation is assembled and the output is printed either in the console or given to the file system, whatever. So this is typically an procedural oriented approach where the first focus was on how to coordinate the program. We started with the main method. Main controls the rest of the things. So we say main is typically we can call it a coordination component, right? Component. Okay. ठीक है? So the first step was coordination. ठीक है? What is the second approach? Second step? What is that we start thinking about while we were building the program? About the behavior, right? How the square root method is going to behave, what input parameters it will take, and what output it is going to return. How adding a two number will behave, adding a three number will behave, and so on, right? So we first started with coordination in mind, then we started with behavior in mind, right? Fine. And behavior translate to function or method, whatever you prefer to call it, right? Then comes the data part. That means if they are method local variable or say global variable, right? Whatever, global variable is not the part of C++, it is something else which is a little different. So whatever is required at that moment while we code these behaviors, we start initializing them and defining them and using them, right? So the approach was coordination, then behavior, and then data. This was a typical procedural oriented programming approach, right? Then let's move to the object oriented programming approach. We know what is a class, we know what is the object, right? So in an object oriented programming approach, let's try to mimic a design first. We try to think of application and let's try to design first. Although the one we have just discussed is typically in an object oriented language, but it was following the procedural approach, a typical procedural approach. There was nothing object orientation in that, right? Now let's move to a problem and we try to mimic the object oriented approach, how the things are done, right?
So let's assume we are going to think about the back end of an application. Front end is the UI part, right? There will be screens and forms. If it's an interface application, then probably you might use HTML or some other UI tag languages, tag technologies, whatever is required, right? So we are thinking about the back end because we will be talking in terms of classes and objects, right? So we are thinking of an employee system where for IT company, for example. So the first thing while trying to work on object orientation or a building application through object oriented programming, right? We will start not by the coordination in mind, but by the objects in mind. And objects, they affirm to the real world entity. If not real, a logical entity. ठीक है? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ठीक है. So we will try to think of entities. What are the entities that may be the player of this part of this game, right? The employee management application for IT company, right? What could be the objects? Can you just list me down what comes to your mind? What are the objects that could be the part of this application? The first thing is employee, right? The first basic thing that comes into mind is employee. Now, employee is something which matches to real people, right? And there will be a number of people. Then designation. ठीक है? Then इन्वेंटरीज एक अलग बात हो गई. इन्वेंटरीज की बात नहीं, हम सिर्फ एम्प्लॉय पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है? वो क्या बेचती है, क्या खरीदती है, उससे हमें परवाह नहीं है. सैलरी could be, or what we can call it, remuneration. ठीक है? Then uh, okay, for department I will prefer, because it's an IT company, I will prefer project that an employee may be associated with. Even if a sales employee is there, then he may have a number of one or two projects that he might be dealing with. ठीक है? Then okay, company branch. ठीक है? Why I kept C and B those both as capital? Because I followed the Java convention. If a class name is made up of more than one words, then the first letter of every word is going to be capital. That's a convention, not a rule. If you break the rule, the code is not going to fail, but your manager or the reviewer, code reviewer, is going to object on it, because this is something everyone knows in the Java world. ठीक है? Then not necessarily that everything should be correct. Even though if we get into some of the object entities which are not correct, which doesn't seem to be correct at this time, we can strike it out later on. So let me write it here. Employee management system for IT company in particular that we are trying to design. It could be any company. We could generalize it as well to any IT company, right? Anything else? Project is already here. Project is already done. Yeah. Now listen. Employee ID is not an object. It's the part of object, employee object.
So that will be just an attribute. Okay. So it will come many times that when you start thinking, you will have a lot of attributes which you think as an entity, and then you will strike it out. Okay. This is so much obvious that I ruled it out initially itself. Or kuch. There could be a lot in fact. For example, if the employee is employer, then we are maintaining the employee management system. We are giving some remuneration to the employee. Then there could be some part related to remuneration. For example, we can say the remuneration is related to remuneration. There is something called as Form 16 that we issue at the end of the financial year, right? Fine. Then a more of a logical entry is not salary but salary slip. Salary slip. Remuneration is one thing which contains all the details of the benefits, the variable pay, the basic pay, the HRA, everything. But actually, what the person gets on a particular month, ठीक है? That's a salary slip for a month, ठीक है? Reward, ठीक है? Okay, so rewards. Uh, so how should I write it? Five, 6, 7, 8. Let me say recognitions that an employee get. ठीक है? Fine. Now we are getting from a very simple entity that comes to our mind to a little. Uh, we are trying to increase our thinking ability to dig a little deeper, right? What could be else? And in the real situation, you will dig it out with the client. There will be people from the client side, right? Who needs the application. So you will try to understand their paperwork, how it works in the company, and automation is nothing but translating a paperwork to a digitized process, right? And the notations of the class and the names, everything that you will use should be coded in such a way that they should be reflected. They should reflect the professional terms and the terminologies that the people who work on real ground should use the same terms and technologies, right? Okay. So fine, we can start with it, and if something comes in the mind, we can just proceed further, right? So this is the first thing that we started doing. We started identifying the objects or the entities. What are the things that matters to my application in the form of an object, a real world entity, or a logical entity, a conceptual entity, right? Whatever matters that I have just listed here with a few entities, and then I will try to find the relationship, if any, exists between these entities. We will try to elaborate these entities further. Okay. So, for example, if I start thinking more about employee, just one entity, I'm taking as an example. Rest we can do it later on. Employee. There could be different types of employees, right? So that means an employee could be on a supervisor role, like manager. Okay. An employee could be maybe a sales.
person, but salesperson again may have a sales supervisor, so it doesn't fit here, right? We just talk about the employees in general, and then we will try to differentiate between IT professional and a salesperson or a HR person and so on, right? Employee, supervisor, and hmm? HR could be one of the employee. He could play a role of a simple employee or a supervisor. ठीक है? Then we may have some interns which are not yet formal employees. They come for a period, and if taken to the company, then they become the employee. Otherwise, they leave after the 6 month or 3 months period of time. We may have interns. They get some salary, right? Of course. Okay. Now, let's start thinking about the relation between employee and its supervisor, or employee or its manager, whether in the terms of sales or HR or IT department or whatever. So, how do we? First thing that we have seen is everything is derived from employee. When I say derived, I literally mean derived. Okay. For every supervisor, there is an employee component. Supervisor is also an employee, right? An intern is also an employee for the time being itself. Okay. There will be certain employees who are basically uh, what we say, they are from a third party company. So the right term would be mm, outsource employed, outsource, right? So there will be outsource employed also. So how the salary is managed differently with outsource employed. Maybe it goes through the agency by the name of the employee, then what is their role, their duty, their attendance and all those things, the working hours, right? Now, so we say one relation between employee and all these subcategories of employee is that supervisor is a employee, right? Fine. Intern is again a employee, ठीक है? Outsource employee is also an employee of the company, although outsourced, but it's an employee. Fine. So there is a relationship between all these entities and the employee, the supervisor, the interns, and the outsourced employee. There is a relationship between them to the employee. That means a supervisor is an employee. Let me frame it in formal words. Intern is an employee. Outsourced employee is also an employee. ठीक है? Correct? Let's bring that HR, IT into the uh, designation of the department whatsoever. ठीक है? Let's not think about them here. That makes sense more over there, right? तो अभी जो मैंने आपको आपके सामने स्क्रीन पे बनाया है, ये सबसे बेसिक लेवल का, या ऐसा कोई टर्म नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जीरो लेवल का आप क्लास डायग्राम समझिए. ठीक है? व्हाट इज द क्लास डायग्राम? अगर ऑब्जेक्ट होगी तो उसका क्लास होगा, उसका स्पेसिफिकेशन होगा जिससे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो अगर आप जो नाम आप बता रहे हैं, एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बता रहे हैं, आप क्लासेस का नाम बता रहे हैं, राइट? इनसे बनाएंगे आप ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो ये क्या हुआ कि एक लिस्ट आपने बनाया पहले कि क्या क्या क्लासेस हो सकते हैं. पहले मैंने आपसे ऑब्जेक्ट सोचने के लिए कहा, क्योंकि रियल वर्ल्ड एंटिटी की जब बात करेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट के टर्म में बात करेंगे. ठीक है, आपके लिए सोचना आसान हुआ. फिर हमने कहा कि अच्छा नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो डिस्क्रिप्शन है उन ऑब्जेक्ट्स का, है ना, या उनका एक तरह से इलस्ट्रेशन, स्पेसिफिकेशन है, ब्लूप्रिंट है, जो भी आप कहें. ठीक है. फिर उनके बीच एक रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, जो कि जो ज्यादा ऑब्वियस थी. इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. ठीक है. एक रिलेशनशिप हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी. तो ये क्या हो गया, ये क्लास डायग्राम हो गया बहुत बेसिक लेवल का. एंड द क्लास डायग्राम इज पार्ट ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज.
ठीक है, I won't get into unified modeling language. आप सर्च करिए, there are several diagrams for various purpose. Class diagram is one such diagram which illustrate about all the classes that you are going to use and their relationship that may exist in between, their properties, that means their state and their behavior, everything combined together. So this here you cannot see the state and the behavior as such, right? It's just the basic level understanding. अभी हमने सिर्फ एम्प्लॉय पे काम करना शुरू किया है, बाकी सब अपनी अपनी जगह पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। And the one thing that we noted that we moved to the object oriented programming style is because the complexity of the application is huge. It's a large it's a too much of the complexity involved, right? The application is going to be huge. It cannot be managed by procedural language. ठीक है, अच्छा, तो यहां तक तो ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे इसी क्लास डायग्राम को ले आते हैं। नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मतलब क्या है कि अब हम सोचेंगे कि भाई एम्प्लॉय तक तो ठीक था, एम्प्लॉय के जो डाटा हैं एम्प्लॉय के अंदर वो क्या क्या होंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम सिर्फ डाटा पे फोकस करेंगे, बिहेवियर पे बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ डाटा पे फोकस करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय को उठाते हैं, अब इसको बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, छोटे से थोड़ा सा बड़ा बक्सा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉय, द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लिस्ट डाउन करेंगे कौन कौन से हमारे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ID. This E should be small, right? Why? We are following the camel case. We follow the camel case in both in variables as well as methods. So what does camel case means? If there are more than one words in an identifier, then the first character of the first word is going to be small letter, and the next first character of the next words are going to be in caps. So employee ID two words are there. E is small, I is capital, D is small again. ठीक है, employee ID. And then we associate a type to the employee ID. It could be alphanumeric or just numeric. Depends upon us, in fact. So what we should choose? न्यूमरिक कर लेते चलिए आसानी के लिए, अगर आप कह रहे हैं तो न्यूमरिक का मतलब क्या हुआ, डेसिमल न्यूमरिक होगा कि नॉन डेसिमल होगा? नॉन डेसिमल होगा। तो जो डिफॉल्ट न्यूमरिक होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, राइट? इंटीजर की सफिशिएंट इनफ 4 बाइट की आपकी साइज भी है। अगर कल हमारे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉय इंटीजर में तो आ ही जाना चाहिए, राइट? तो हम इसको कह देते हैं इंटीजर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बाइट और शॉर्ट सम फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो हम एक डिसीजन हमने ले लिया फिलहाल के लिए जो हमें रीजनेबल लगा। इट शुड नॉट बी 100% करेक्ट, वी आर स्टिल डिजाइनिंग, सो इट शुड बी अ रीजनेबल डिसीजन, राइट? कब इंटीजर है। देन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम इसका क्या टाइप होना चाहिए, स्ट्रिंग। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते आप, यहाँ पे जब आप यूएमएल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आप इनकी विजिबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस करते जा रहा हूँ तो माइनस का मतलब मैं प्राइवेट बनाते जा रहा हूँ इनको, एंड वी विल सी व्हाई आई एम प्रेफरिंग प्राइवेट ओवर पब्लिक। अगर पब्लिक होता तो वो प्लस सिंबल से बनता है, ऐसे बनता प्लस। ठीक है, ये माइनस सिंबल देने का मतलब ये प्राइवेट है सारे वेरिएबल्स। ठीक है, देन सॉरी एम्प्लॉय एड्रेस। अच्छा, नाउ फॉर एड्रेस, now there comes a problem. How should address should be maintained? String चलेगा? But remember one thing, that whatever entities that you are making, they are actually going to be mapped somewhere in the relational tables. ठीक है, अब अगर मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया और मुझे सर्च करना है, कल को पता चला कि लॉकडाउन लगा, ठीक है, और हमें पता है कि भाई आपके गुड़गांव में लॉकडाउन लग गया है लेकिन यूपी में लॉकडाउन नहीं लग गया है। ठीक है, और या गुड़गांव में चलिए पानी भर गया है, बाढ़ आ गई, उधर के एम्प्लॉइज नहीं आ पा रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम देना है, फॉर एनी मैटर। ठीक है,
तो हमको किसी स्पेसिफिक लोकेशन के पिन कोड के एम्प्लॉयज को सर्च करना है। अगर पूरी पूरी स्ट्रिंग होगी डाटाबेस में तो उसको लेके हम पार्स कहाँ करते फिरेंगे। तो इसका मतलब कि अगर डाटाबेस में वो चीज़ है तो वो ब्रेकडाउन होकर रहनी चाहिए। इसका मतलब डाटाबेस में एक टेबल ही अलग होना चाहिए एड्रेस का, जो कि मैप हो प्राइमरी की, जिसकी क्या हो, एम्प्लॉय आईडी हो। एम्प्लॉय आईडी से हम फेच कर रहे हैं कि कैसा एड्रेस है इसका, ठीक, कौन सा एड्रेस है। दिस वाज वन प्रॉब्लम। यानी कि ग्रेनुलरिटी को हम फोकस कर रहे हैं कि अगर अब हमें एट्रीब्यूट अगर हम लेते तो एट्रीब्यूट में हम स्ट्रिंग ले सकते थे, बट नाउ बिकॉज वी नीड मोर more granularity, or we want to break into more parts, then probably just having a single string is not enough। ठीक है, तब पिक्चर में क्या आएगा, हम बात करेंगे एक और क्लास की, विच इज द एड्रेस क्लास। नाउ दिस एड्रेस क्लास may be mapped to a relational table by the name address, which has a primary key employee id, और फॉरेन की, सॉरी, फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी, नॉट प्राइमरी की। प्राइमरी की तो एम्प्लॉय की है ना, एम्प्लॉय आईडी, फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी, राइट। एड्रेस की हम बात करेंगे। एड्रेस में हमने कहा कि भाई एड्रेस हम कह रहे हैं तो हम बोलेंगे भाई उसका हाउस नंबर बताएंगे, एच नंबर, ठीक है। इट कुड बी स्ट्रिंग ऑफ कोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे आता है, E75 इस तरह से आता है, इट कुड बी स्ट्रिंग। देन वी हैव गॉट स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट और लेन जो भी हम कहें, इसको भी स्ट्रिंग कह देंगे हम। देन लोकेलिटी, से फॉर एग्जांपल ये हमारा जो एरिया है ये पूरा तालिमाबाद है या अलकनंदा है, जो भी है, लोकेलिटी, लोकेलिटी का ये भी स्ट्रिंग चलिए हमने कह दिया, ठीक है। देन देन स्टेट एंड सिटी एंड स्टेट, राइट। सिटी स्ट्रिंग, स्टेट स्ट्रिंग, ओके। पिन कोड, इट कुड बी इंटीजर टाइप, 6 का नॉर्मली होता है इंडिया में, तो ठीक है। अच्छा, फिर अगर अगर इसको एड्रेस हम बोल रहे हैं तो फिर अगर कभी एम्प्लॉय को हमें कांटेक्ट करना पड़ा तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ उसके एड्रेस पे लेटर भेजते फिरेंगे। इसको ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं हम। अगर जनरलाइज करेंगे तो हमें दो डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अलग क्लास बनाएं, या तो एड्रेस को हटा के कॉन्टैक्ट डिटेल ही बना दें, क्योंकि दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। जो फिजिकल एड्रेस है वो भी कॉन्टैक्ट डिटेल का पार्ट है, और जो आपका बाकी डिटेल है वो भी होता है। अगर हम कहते हैं कि चलो हम सिस्टम को ज़्यादा बाइफरगेट करना चाहते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं चलो हम कॉन्टैक्ट डिटेल वाली क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल बना के देखते हैं, ठीक है, कैसे सिस्टम और डिजाइन हो रहा है धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं प्राइवेट है, ठीक है, ऑफ। तो ये सिर्फ एड्रेस का पार्ट हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल, सी कैपिटल डी कैपिटल, राइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें हमने क्या कहा, फोन, दैट कुड बी से अ लॉन्ग वैल्यू प्रीफरेबली, ठीक है। कभी वो इंडिया के बने रहेगा, कहीं बाहर हो सकता है, प्रोजेक्ट पे जाए, जो भी है, जो भी फोन नंबर उसका है तो हो गया। ईमेल स्ट्रिंग, ठीक है। देन ऑफिस एक्सटेंशन, ऑफिस एक्सटेंशन, ये तो आपके उसमें रहने दो। और कुछ फोन ईमेल के अलावा। अब एड्रेस घूम करके आएगा कॉन्टेक्ट डिटेल में, ठीक है। तो यानी कॉन्टेक्ट डिटेल का अब जो डाटा वेरिएबल्स हैं वो अब तक जो थे वो प्रिमिटिव या फिर स्ट्रिंग टाइप में दिख रहे थे। स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड ही है, डिराइव्ड है, बट वी हैव नॉट क्रिएटेड इट, राइट। द जावा पीपल हैव जावा फॉक्स क्रिएटेड फॉर अस एंड लेट अस यूज इट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर्ली एड्रेस आएगा, ठीक है, फाइन। तो मतलब एड्रेस का है, बता रहा हूँ अभी कैसे सेट होंगे। अभी आप इसको टेबल के फॉर्म में देख रहे हैं ना, तो आप टेबल के फॉर्म में सोच रहे हैं कि एड्रेस के साथ फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, लेकिन मैं उस फॉर्म में नहीं देख रहा हूँ। अभी हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं, कैसे करते हैं हम अभी देखते हैं उसको, कैसे हम रिलेट करेंगे, ठीक है। एड्रेस हो गया आपका, फाइन। एड्रेस इज अ डाटा टाइप, दिस डाटा टाइप, द क्लास दैट वी हैव जस्ट यू नो derived or created, rather not derived but created, ठीक है। now let's say the address is variable, his name is add,
ठीक है, inside the contact detail. But for employee, if you fill a form, there usually you will see that there are two types of contact details: the 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 current and permanent. ठीक है, प्रेजेंट एंड करस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, भाई मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल तो चाहिए, हो सकता है घर का फोन नंबर कुछ और उसका हो, ठीक है। तो हम कहेंगे हमें कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए, एक टाइप हो गया डाटा टाइप कॉन्टैक्ट डिटेल डिटेल, और इसको नाम दिया आपने प्रेजेंट, ठीक है, जो भी है जिस सिटी में रह रहा है कोई भी नाम दे दे, आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा एक और आप अपने इसका इसका एक और वेरिएबल सेम टाइप का बनाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या दे इसको, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसे परमानेंट एड्रेस वगैरह उसकी सब चीजें आ जाएंगी, राइट। अब देखिए यहाँ क्या मुझे एम्प्लॉय आईडी की जरूरत पड़ी क्या, मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही डिस्क्रिप्शन उसका दे रहा हूँ ना। तो अगर मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिल गया तो मुझे उसका प्रेजेंट कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल गया, उसका परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया, उसका एम्प्लॉय आईडी मिल गया, उसका नेम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। प्रेजेंट कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर के मैं उसका प्रेजेंट फोन नंबर भी उठा लूंगा, और परमानेंट में जाकर के घर का फोन नंबर भी उठा लूंगा, कर सकता हूँ, राइट। तो इस केस में हमको हमको एक्सप्लिसिटली कैसे इनको मतलब किसी वैल्यू से रिलेट करना है वो नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखेंगे जब आप अभी तो आप कोर जावा पढ़ रहे हैं, जो लोग अगर थोड़ा बहुत पूरे स्टैक के दूसरे कंपोनेंट से वाकिफ है तो देखेंगे कि ये जो होता है टिपिकली, अगर आप जावा में आप काम कर रहे हैं तो सबसे बेसिक जो टेक्नोलॉजी होती है डाटाबेस से ट्रेड करने की, वो क्या बोलते हैं इसको, जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें आप जावा कोड के अंदर एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं, जैसे इंसर्ट दिस टू द एम्प्लॉय, राइट, ऐसे आप लिखते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। बट बिकॉज एप्लीकेशन आर गोइंग ह्यूज, वी स्टिल वांट टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो रियल वर्ल्ड में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आपको जेडीबीसी पे काम करने को आज के टाइम में नहीं बोलेगा, आप टिपिकली यूज करेंगे कोई ना कोई ओआरएम टूल, वन ऑफ द स्प्रिंग हाइबरनेट एंड इस तरह की चीजें आप यूज करेंगे, राइट। स्प्रिंग ओआरएम भी अब हाइबरनेट से लिंक हो सकता है या दूसरे ऑब्जेक्ट मैपिंग टूल से लिंक हो सकता है, राइट। उसमें क्या होगा, उसमें आप सिर्फ इतना करते हैं कि जैसे हाइबरनेट हो गया, उसमें टेबल आपने बनाया, टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि एक एक्सेल शीट एक एक्सएमएल शीट आपने बनाया, ठीक है, एक्सएमएल पेज बनाया, एक्सएमएल पेज में या प्रॉपर्टीज बनाई, प्रॉपर्टीज पेज बनाई, जो जो भी तरीका हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग तरीका होता है। उसमें आप एक मैपिंग करेंगे कि ये टेबल अगर एम्प्लॉय है तो डाटाबेस में किस नाम से टेबल है, हो सकता है डाटाबेस में एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल नाम से टेबल हो, उसका कन्वेंशन भी अलग होता है, ठीक है। तो उससे आप मैप करेंगे, इसका ये पर्टिकुलर फील्ड्स है तो डाटाबेस के किस किस फील्ड से मैप होंगे, राइट। ये सब आप उसमें मैपिंग करेंगे। जब आप मैपिंग कर लेंगे तो आप अपने जावा कोड में अगर आप ओआरएम फ्रेमवर्क वगैरह को यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली एक लाइन कोड लिखेंगे, सेव एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल अमित है, अमित सिंह, ठीक है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। आपने करके इतना किया, वो पहले एम्प्लॉय में डाटा को सेव करेगा, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस को सेव करेगा, फिर उसके बाद उसके फर्दर उससे इंडेक्स करके वो आपका क्या बोलते हैं एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस पे सेव करेगा एंड सो ऑन, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। आपने कहा कि आई वांट टू रीड समथिंग, तो कुछ ना कुछ इसके लिए मेथड होगा, फॉर एग्जांपल रीड होगा या कोई भी मेथड होगा जिसको आपने कहा एम्प्लॉय, और आपने पास क्या किया, एम्प्लॉय आईडी पास कर दी। तो एम्प्लॉय आईडी जाकर के एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय की डिटेल निकालेगा, उससे जो जो रिलेशन जिन टेबल बन रहा है सबसे निकाल करके आपको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना के दे देगा। तो थिंग्स आर वेरी इजी नाउडेज, राइट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फंडामेंटल बना करके अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो बैकग्राउंड में इस तरह की चीजें होती हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोस डेप्थ एज ऑफ नाउ, जस्ट वी आर ट्राइंग टू आप मास्टर्स के स्टूडेंट है, ठीक है। अब आप बहुत जल्दी आप जॉब पे जाएंगे, अपने से भी काफी आप कुछ काम करेंगे इस तरह का, तो एक पिक्चर प्रेजेंट करने की हम व्यू कर रहे हैं कि चीजें कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, बिग पिक्चर कैसे कैसे फिट होती है, राइट। तो हमने अब की बार आपका जो टिपिकल प्रोसीजरल अप्रोच था उसको छोड़ करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच पे हम बढ़े, और वी हैव आइडेंटिफाइड द एंटिटीज फर्स्ट, ठीक है। एक एंटिटी को उठाया पहले, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकाली, मतलब क्या क्या उसके ड्राइव टाइप हो सकते हैं, ये सब निकाला। फिर उसके बाद उस एक एम्प्लॉय को उठाया, अभी तक हम सुपरवाइजर, इंटर्न और आउटसोर्स पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। हो सकता है सुपरवाइजर में कुछ चीजें और भी मैटर करें, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम सुपरवाइजर और एम्प्लॉय को आइसोलेशन में देखें, अलग करके देखें, तो हम क्या बोलेंगे,
इधर आपका एम्प्लॉय है, इधर आपका सुपरवाइजर है, ठीक है। दोनों समहाउ एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड है। सो अ सुपरवाइजर मे मैनेज 0 और मोर एम्प्लॉइज। रिलेशनशिप क्या हो गई? मैनेज, डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अ सुपरवाइजर, वन सुपरवाइजर कैन मैनेज 0 और मोर एम्प्लॉय, but an employee but an employee or rather 0 or more employees or rather every employee, ठीक है, is managed by just one supervisor at a time, ठीक है। एसोसिएशन भी से पिक्चर में आ गई, ठीक है। अब एसोसिएशन जब पिक्चर में आएगी तो इसका मतलब इस एसोसिएशन से कोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, क्या समझते हैं? कोर्ट पे क्या असर पड़ेगा इससे? Now just keep in mind that every employee is an employee and he might be a supervisor. Supervisor होना necessary नहीं है, but a supervisor is again an employee. He will be again managed by some other person. ठीक है, अपने किसी बॉस, उसका भी तो कोई बॉस होगा, ठीक है। तो कोर्ट पे क्या असर पड़ेगा इस रिलेशनशिप को शो करने का? हमने ये दिमाग में सोच करके पेपर ड्रॉ तो कर दिया है? नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है, वो तो आपने जब कहते हैं ना मूसल में सर दिया तो ओखली से क्या डरना है ना, उसकी टेंशन नहीं लो। अभी कोड ये जो हम बना रहे थे, ऊपर जो डायग्राम बना रहे थे, इसके सिर्फ सोचो कि क्या चीज बढ़ जाएगी इसमें, कुछ बढ़ेगी? एवरी एम्प्लॉय विल हैव एटलीस्ट वन सुपरवाइजर, इनफैक्ट वन सुपरवाइजर, लेट्स मेक अ रूल, ठीक है। एक एम्प्लॉय का एक साथ सुपरवाइजर नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड सुपरवाइजर इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सो वी विल से अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एस स्मॉल कर दिया मैंने सुपरवाइजर वेरिएबल का, एंड सुपरवाइजर एस विथ कैपिटल एस इज अ क्लास सुपरवाइजर, ठीक है, फाइन। और जब हम सुपरवाइजर क्लास को देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसके पास हर वो चीज होनी चाहिए जो एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसका भी एक सुपरवाइजर होना चाहिए, वो भी उसके अंदर होना चाहिए, प्लस अब इसी रिलेशनशिप को जो हमने ये यहाँ बनाया, इधर रिलेशनशिप बनाया है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अ, ये रिलेशनशिप था सुपरवाइजर एम्प्लॉय के बीच, इसको अब इस फॉर्म में ले आते हैं यहाँ पर। इस रिलेशनशिप हमने बताई थी, राइट। ये यहाँ पे सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर इज एम्प्लॉय, हमने ये नोशन यूज कर रखा है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुकी हैं। अब ये समझिए, हमको इसको अलग से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, इनेट हो गया। बट अ सुपरवाइजर इज गोइंग टू मैनेज वन और मोर एम्प्लॉय, ये चीज अभी इस पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ये कैसे रिफ्लेक्ट करें? यही तो एक्सटेंशन है ना उसका, एम्प्लॉय का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब सुपरवाइजर इज जस्ट नॉट अ नॉर्मल एम्प्लॉय, it has something plus to it, right? And the plus side is that it manages one or more employee, it's one of the extensions, ठीक है। तो हम ये भी कहते हैं सुपरवाइजर इज अ एम्प्लॉय, वेयर एज एम्प्लॉय इज अ जनरलाइजेशन, इसको बोलेंगे जनरलाइजेशन। अभी मैं धीरे धीरे आपको टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाद में इसके लिए हम यूज टू हो जाएंगे। एम्प्लॉय इज अ जनरलाइजेशन, अ जनरलाइज टर्म, एंड सुपरवाइजर इज अ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइज टर्म, ठीक है। वी आर गेटिंग इनटू पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्प्लॉय, प्लस
उसी को हम इस तरह से भी कहेंगे कि सुपरवाइजर इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन टू द एम्प्लॉय, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट एवर एम्प्लॉय हैज that is a part of the supervisor, plus it will add some more thing. ठीक है, it is also an extension to the एम्प्लॉय। तो अलग अलग अगर हम वर्ड हम यूज कर रहे हैं सेम ही बात को बताने के लिए, तो उस हर वर्ड की लिटरल मीनिंग के हिसाब से उसका पर्पस बदल जा रहा है हमारा, कि हम क्या उसको किस चीज को फोकस करना चाह रहे हैं। राइट, क्लियर हुई बात? ठीक है, अब ये सुपरवाइजर में ये रिलेशनशिप कैसे आएगी? क्या सुपरवाइजर मैनेजेस अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, a number of employees could be seen as a list of employees. List of employees could be made, could be translated to a code either using any of the collection APIs, or if you do not know about the collection APIs, don't worry, at least we can represent it by arrays that is available in all languages. ठीक है, तो हम कहते हैं फिलहाल अरे की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक एम्प्लॉय का अरे होगा, एम्प्लॉय का अरे होगा। ठीक है, एंड लेट्स से दैट employee, even though it's a very large company, we should fix that because array needs to fix the elements which could get into it. Let's say that that a employee may not, company policy is that employee does not manage more than 100 employees. As of now we have the policy, but when we see that we can use something else apart from arrays, then this policy may not be necessarily be put into action. ठीक है, it will automatically be decided. ठीक है, so हमने कहा कि एम्प्लॉय का एक हमें अरे मेंटेन करना पड़ सकता है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सुपरवाइजर। हो गया क्या? सारी बात समझ में आ रही है? कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी प्रोसीजरल लैंग्वेज को के समझने से, कि हम सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन यानी मेन मेथड पे से स्टार्ट किया, फिर हमने बिहेवियर यानी फंक्शंस की बात करी, और फंक्शंस को कोलैबोरेट करता रहा बीच बीच में आपका मेन मेथड जैसे हम बनाते रहे। देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डाटा, लोकल वेरिएबल्स एंड द ग्लोबल वेरिएबल्स, ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर बी रिक्वायर्ड। तो इस तरह इस ऑर्डर में सीक्वेंस में प्रोसीजर लैंग्वेज में कहानी चली थी। अभी हमने क्या करा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, सबसे पहले डाटा की बात कर रहे हैं। एंटिटीज भी तो डाटा ही है ना, एक तरह का डाटा ही है ना, डिराइव डाटा टाइप है। तो हमने डाटा की बात करी, कहानी बदल गई, उल्टी जा रही है। अब देखिए, आप ठीक रिवर्स जा रही है कहानी। अब डाटा की पहले बात करी हाई लेवल पे, फिर लो लेवल पे डाटा के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम। एम्प्लॉय की बात करी, डेजिग्नेशन की बात करी, रिम्यूनरेशन, प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज की बात करी। एम्प्लॉय में आया तो देखा कि भाई कितने तरह के एम्प्लॉय हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई एम्प्लॉय के अंदर के जो डाटा है वो डाटा सिंपल टाइप के हैं या डिराइव डाटा टाइप से मिले हुए हैं। उनके लिए हमने एंटिटी बनानी शुरू करी बाद में। ये पहले हमने नहीं सोचा कि कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, एड्रेस होगा, अलग अलग टाइप की क्लास होंगी। अब प्रॉब्लम जब स्टेटमेंट में हम नेक्स्ट लेवल पे हम उसके डिजाइन पे जब पहुंचे, तब हमें समझ में आया कि भाई अच्छा, हमें जरूरत है कॉन्टैक्ट डिटेल की अलग से, एड्रेस की अलग से, और इन सबको क्लब करना है एम्प्लॉय के साथ हमको। ठीक है, क्योंकि हमको सर्च करना पड़ सकता है एम्प्लॉय आईडी के परमानेंट एड्रेस के जिप कोड को। ठीक है, एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया बिना बिना नोटिस पीरियड सर्व किए, आप उसको नोटिस भेजना है। ठीक है, कैसे सर्च करेंगे? वो तो रिलोकेट हो गया, जिस जगह नहीं उसकी जगह जॉब लगी, वो चला गया, घर बार तक छोड़ के चला गया। तब उसके परमानेंट एड्रेस जाएंगे, उसके पिन कोड वगैरह निकालेंगे, जो भी चीज़ है उसके एड्रेस को निकालेंगे, उसको उसके मेल पे मेल भी करेंगे, उसको फोन भी करने की कोशिश करेंगे, उसको आप फॉर्मल लेटर भी भेजेंगे, जो जो कुछ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आए, अभी तक ये सब डाटा ही चल रहा है। राइट, अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे। ठीक है, एम्प्लॉय को अभी एक क्लास को पकड़ रहे हैं, सिर्फ सारी क्लासेस भरी पड़ी हैं अभी करने के लिए, अभी एक क्लास को सिर्फ पकड़ रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास, इसमें जो डाटा हमने डिसाइड किए थे वो सारे यहाँ आ गए, डाटा यहाँ आ गए। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ, यही सब चीजें हैं यहाँ पे आ गई। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, माइनस साइन का मतलब दे आर प्राइवेट वेरिएबल्स। व्हाई आई एम पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन प्राइवेट, वी विल सी लेटर। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल्स है। अब हम बात करेंगे कि इन पे हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें जरूरत पड़ी उसके उसके परमानेंट एड्रेस की। ठीक है, या परमानेंट कॉन्टेक्ट डिटेल की, तो हम कहेंगे कि गेट
परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये एक फंक्शन के फॉर्म में मैंने रिफ्लेक्ट करा, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव का सिंबल का मतलब ये पब्लिक मेथड है, बिहेवियर। अब हम मेथड्स पे आ रहे हैं, ठीक है। गेट परमानेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, गेट करंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। गेट एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक नेम एज, ये सब चीज़ें हो गई है ना, नेम एज, मैरिड है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, ठीक है, ये फैमिली डिटेल्स जो होती हैं, ये सब। तो ये सब चीज़ें फिर यहाँ पे क्या होगी, आपके मेथड्स लिस्ट डाउन होने शुरू हो जाएंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एम्प्लॉय पर। गेट द प्रोजेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ठीक है। अब बताइए प्रोजेक्ट जो है एम्प्लॉय में क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा या कुछ और होगा? अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम की बात करें तब तो हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, बट हो सकता है कि एम्प्लॉय दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट तक पहुंचेंगे तो हम हो सकता है हमें जरूरत ये भी फिगर आउट करने की पड़े कि उसका क्लाइंट कौन सा है, उसके प्रोजेक्ट में किस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो कौन है, तमाम चीजें। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि प्रोजेक्ट एक जस्ट स्ट्रिंग वेरिएबल है, प्रोजेक्ट नेम फिक, तो हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट्स। एक अरे की बात करी, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक अरे की बात करी, ठीक है। मे बी 2 और 3 और 5 मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिन प्रोजेक्ट्स पे वो असाइंड है, ठीक है। अब वो किस टाइप के होंगे, वो प्रोजेक्ट एडिट टाइप के होंगे, जिसके अंदर फिर एक लंबी पूरी लिस्ट होगी आपके एट्रीब्यूट्स की और बिहेवियर्स की, राइट। बट जो तरीका सोचने का जो तरीका था हमारा वो पूरी तरह बदल चुका है। हमने सबसे पहले डाटा पे शुरू करा, डाटा के बीच का रिलेशनशिप वगैरह इन सब पे फोकस करा, और फिर कहीं जा करके फिर उसके अंदर जो और निटिग्रिटीज में गए डाटा के। जब फाइनल डाटा की निटिग्रिटीज पे हम काफी हद तक पहुंच गए, ऐसा मतलब नहीं है कि ये एक बार में हमने सोच लिया तो यही करेंगे, दिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, हम करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, राइट। लेकिन जब एक बार हमें निटिग्रिटी से पहुंच गए तो एक सर्टेन लेवल की डिस्टेंस के बाद उसको छोड़ देंगे अब आगे, ठीक है, क्योंकि हम एकदम से हम परमानेंट डेप्थ में तो हम एक बार में नहीं फिक्स कर सकते। फिर कुछ बातें आएंगी, कुछ क्लाइंट के साथ कुछ आएगा, कुछ चीजें आएंगी, कोई कहेगा कि भाई रिव्यू कोड रिव्यू में इसमें ये भी होना चाहिए, तो हम उसको फिर से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, द स्कोप इज ऑलरेडी ऑलवेज ओपन, राइट, उसको हम छोड़ देंगे। अब हम पहुंचे उसके बिहेवियर पे, हमने बिहेवियर को लिस्ट डाउन कर दिए, एक वक्त आएगा कि बिहेवियर भी हमारे जो हमारे समझ से उस वक्त के लिए जरूरी है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हम उनको भी छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अब सोचेंगे अब इतनी सारी क्लासेस हमने बना ली हैं, इनके एट्रीब्यूट्स बना लिए, इनके फंक्शन बना लिए, सब कुछ कर लिए, इनको यूज कैसे करें, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें। तो हम वो क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर क्लास, जिसके अंदर मेन मेथड होता है, ठीक है। उससे फिर ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिर मेथड एक दूसरे को कॉल करेंगे, तो तमाम चीजें उधर शुरू होंगी, है ना। फिर जाके हम सोचेंगे ड्राइवर क्लास के बारे में, ड्राइवर क्लास जो भी हो, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दें, जैसे स्टार्ट ऐप आपने नाम दे दिया, ठीक है, या स्टार्ट एप्लीकेशन नाम दे दिया, कोई भी ड्राइवर क्लास। इसमें क्या होगा कि आपका एसेंशियली इसमें आप बात कर रहे हैं मेन मेथड की, जो आप प्रोसीजर लैंग्वेज में सबसे पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन हुआ, प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या था, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन था, फिर बिहेवियर था, फिर डाटा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हुआ, ये था प्रोसीजर का पार्ट, प्रोसीजरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या होगा, पहले डाटा पे आएंगे, फिर बिहेवियर पे आएंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन पे आएंगे। कहानी पूरी बदल गई, रही, राइट। आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपका ऑर्डर बदल गया, सब कुछ बदल गया। कोई डाउट इससे भाई? आज लैब 3 में से ना, तो एक छोटा सा आउटलाइन में क्या करता हूँ कि मैं जैसे एक्लिप्स पे जा करके बनाता हूँ अभी, उसके बाद लैब में आप कोशिश करेंगे इनके कंपोनेंट्स को जितना आप जितने हद तक कर सके करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है। And what we have essentially discussed is the class diagram here.
ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बना ले पहले। सॉरी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये बना रहा हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करा हमने, हमें जीआरई लाइब्रेरी मिल गई प्लस सोर्स कोड एसआरसी का फोल्डर मिल गया। इसके अंदर हम पैकेज बनाते हैं, न्यू पैकेज से हम जामिया हमदर्द में काम कर रहे हैं, जामिया हमदर्द प्रोजेक्ट बना रही है इसका, इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द डॉट पहला पैकेज कौन सा होगा। अब इसको फर्दर हमें ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो पैकेज वही काम करता है जो लाइब्रेरी में शेल्स काम करते हैं, राइट। हाँ, फोल्डर स्ट्रक्चर ही बनता है बेसिकली। तो उसका कोई प्रॉपर सेंस बताइए भाई। एम्प्लॉय का एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जिसमें सैलरी हो गया, फॉर्म 16 हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। एक है मतलब रिम्यूनरेशन वगैरह हो गया। एक है उसका उसका एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल हो गया, ठीक है। हाँ, एक हो गया उसके प्रोजेक्ट डिटेल्स हो गई, सब चीज़ें हो गई, तभी हम इसको कह रहे हैं चलो बेसिक ही बात है अभी, ठीक है। बेसिक की बात कर रहे हैं, जो बेसिक डिटेल्स आपके यूज हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम 3 बना के देखते हैं, एम्प्लॉय, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। न्यू क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। न्यू क्लास कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देखिए मैं कन्वेंशन सारे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। किसी में मेन में नहीं लिख रहे, मेन में किसी में नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। फिर उसके बाद न्यू क्लास एड्रेस, ठीक है। अब एम्प्लॉय पे आ जाइए। एम्प्लॉय में हमने क्या क्या सोचा था, एम्प्लॉय आईडी सोचा था, सो इंट एम्प्लॉय आईडी कैमल केस, राइट। फिर स्ट्रिंग, हाँ ये सारी चीज प्राइवेट रहेगी। मैं पर्पजली प्राइवेट बना रहा हूँ। प्राइवेट का मतलब क्या है, अगर बहुत लोग अभी नहीं समझते हैं तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बस समझ लीजिए कि अभी प्राइवेट में कीवर्ड लिखता जा रहा हूँ इसके आगे, थोड़ा सा इसको अभी आगे थोड़ा सा डिफर करेंगे। जो लोग अगर एकदम बेसिक समझते हैं तो उनके लिए तो डिफर करेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का क्या बनेगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, राइट। और क्या फील्ड सी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स से, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सुपरवाइजर वगैरह ऐसा तो प्रोजेक्ट है, चलो सुपरवाइजर सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर होगा, राइट, उसका अलग से हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि भाई कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट क्लास का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। ऐसे स्पेस कंट्रोल स्पेस करेंगे अपने आप आ जाएगा, सिलेक्ट करिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। आईडी का यूज ज़्यादा करिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। प्रैक्टिकली हम बैठ करके उस पर तो नहीं कर सकते ना कंसोल पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स या प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। एक हो गया। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक और बनाएंगे हम, कौन सा, परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर क्या चाहिए हमको, इसमें हम ईमेल आईडी, फोन नंबर जोड़ेंगे, लॉन्ग एम्प्लॉय, इट्स प्राइवेट। अच्छा, यहाँ भी हमने जो एम्प्लॉय बनाए थे इसमें इनको भी प्राइवेट ही बना देते हैं, ठीक है। लेट्स से एवरीथिंग इज प्राइवेट, सारे डाटा को हम फिलहाल प्राइवेट रख रहे हैं बिना भेदभाव के, ठीक है। वाई वी विल सी लेटर, ठीक है। प्राइवेट लॉग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फोन था ना, फोन, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय मेल आईडी, फाइन। देन एड्रेस,
अब देखिए इसमें सिंपली हम एड्रेस डालेंगे, इसमें हम प्रेजेंट या परमानेंट की बात नहीं करेंगे, वो हमने बात ऑलरेडी इम्प्लाई पे कर ली है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एड्रेस जाएगा, एड्रेस एड्रेस इसको इम्प्लाई एड्रेस कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इम्प्लाई ADD RE डबल एस, ADD होता है कि ADD होता है, राइट। डबल एड्रेस, इम्प्लाई एड्रेस, ये चीज़ हमने डाल दी, राइट। अभी भी एड्रेस हमारा खाली है, इसको भी सेव कर दें। यहाँ पे क्या डिटेल्स है बताइए, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, पिन, सो ऑन, है ना। So house number may be a string, and it could be a private variable string, house number, private string, street, private string, locality, then और क्या था, city, private string है, ओके। सेमीकोलन लगाना चाह रहा था, ये कुछ और लग गया। स्ट्रिंग क्या था, ये सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्टेट, नेशनलिटी भी कर लेते हैं, बाहर के भी नेशनल हो सकते हैं, राइट। मल्टीनेशनल कंपनी है हमारी, नेशनलिटी लिख रहा हूँ मैं अभी, स्ट्रिंग, ठीक है, प्राइवेट इंटीजर पिन, ठीक है, दैट्स इट। अब इतना हमने कर लिया, तब इनके ये सारे वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। अच्छा, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि इस क्लास के अंदर अगर हम कोई कोड लिखे, कोई फंक्शन लिखे, तो उनके अंदर ये सारी चीजें एक्सेस हो सकती हैं, विजिबल हो सकती हैं। इस क्लास के बाहर अगर हमें इनको चाहिए, इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्राइवेट कोई भी चीज, मेथड हो चाहे वेरिएबल हो, वो इस क्लास के बाहर के लिखे कोड में विजिबल नहीं होगा। और ठीक इसका उल्टा होता है पब्लिक। अगर कोई चीज आपने पब्लिक डिफाइन कर रखी है, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी स्पेसिफायर या एसेसिबिलिटी स्पेसिफायर, तो वो विजिबल या एसेसिबल होगा किसी भी जगह से, किसी भी क्लास से, किसी भी क्लास की कोड से, किसी भी पैकेज के अंदर से, बशर्ते इसी एप्लीकेशन का पार्ट हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्राइवेट इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, जो इस क्लास के इस कर्ली ब्रेसेस से शुरू होगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई कोड हम लिखेंगे तो उसमें ही वो चीज एक्सेस हो सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। इसके बाहर नहीं कर सकते। पब्लिक का मतलब आप जहां से चाहे वहां से चेंज कर ले, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम आते हैं मेथड्स पे, हमें मेथड डिफाइन करने हैं इनके, इन सभी के लिए, राइट। कि हम, चूंकि हमें तो एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है फाइनेंस सेक्शन का कोई मॉड्यूल हो, वहां से पूछे कि भाई इसका फॉर्म 16 जनरेट करना है, इस एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालो, ठीक है ना, उसका एड्रेस और एम्प्लॉय आईडी वगैरह निकालो, राइट। तो कहीं और से भी यूज करना पड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है हमें इनको एक्सेस तो चाहिए, इनका वेरिएबल्स के डाटा का, इनकी वैल्यूज का। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, गेटर और सेटर मेथड, ठीक है। और गेटर और सेटर मेथड का नेचर क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्टेड है तो कम से कम इन तक पहुंचने का तरीका जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब इसके पीछे एक रीजन है कि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको ही अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं करा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें कोई ना कोई तरीका चाहिए इनकी वैल्यूज तक पहुंचने का। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इतना कोड से नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया, सोर्स पे गए, हमने कहा जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सारे के सारे आपने सिलेक्ट ऑल कर लिए और आपने जनरेट कर लिया। देखिए सारे गेटर एंड सेटर्स अपने आप इतने सारे कोड लिख करके आपके पास आ गए। तो जो आपने एम्प्लॉय में किया, वही चीज आप जाकर के कॉन्टेक्ट डिटेल में करिए। क्या नहीं समझा मैं आपकी बात। अच्छा, ओ, हाँ, इसके अंदर बॉडी के अंदर होना चाहिए, तभी जाके वो एक्सेस करता है, वरना बात नहीं। हाँ, सो जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, कंट्रोल एस सेव कर लीजिए, स्टार्ट चला गया। एड्रेस में अगेन लेट्स से सोर्स जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, आपने जनरेट कर लिया।
नाउ वी विल थिंक अबाउट द कोऑर्डिनेशन पार्ट। पहली टेस्टिंग जो हमें करना है उसके लिए ड्राइवर क्लास लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देख एक क्लास होगी जिसे मेन मेथड बनाएंगे, बोलेंगे टेस्ट ऐप करके, उसके अंदर मेन मेथड होगा, उसके अंदर ये सब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के वेरिएबल चाहे तो रीड करें कीबोर्ड से या डायरेक्टली हार्ड कोड कर दे टेस्टिंग के पर्पस के लिए। ठीक है, वरना फॉर्म में आप अज्यूम करेंगे आप रीड ही कर रहे हैं, राइट। बहरहाल इन वेरिएबल्स को सेट करेंगे, फिर उनको प्रिंट करके देखेंगे, सारे काम आप ड्राइवर क्लास के अंदर से करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ लैब में इतना लिख करके फिर आगे इसको एक्सटेंड आप करेंगे। ठीक है, so let's stop over here.